Hello, good morning. Myself Om Shankar Yadav, Assistant Professor Agronomy. Our subject is rain-fed agriculture, and our today topic is soil and climatic constraints in rain-fed agriculture. Rain-fed agriculture में soil से related और climate से related कौन-कौन से constraints हैं? First is soil-related constraints. Rain-fed soils are generally poor in quality. Quality means low fertility, high erodibility, origin shallow, and susceptible to loss of physical integrity. These have very weak buffering and resilience capacity. The soils suffer from excess of salt, alkaline or saline soils in arid and semi-arid areas, and acid soils in sub-humid and humid areas. Micronutrients and ameliorants, mainly lime, are deficient and need supplementation periodically. अप्लाई करने की आवश्यकता होती है. The soil are mostly coarse textures, highly degraded with the low water retentive capacity, multiple nutrient deficiency, and those are not conducive for intensive cropping. इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए नहीं होती है कि उसकी कोर्स टेक्सचर होती है जिससे वाटर होल्डिंग और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है. The principal factor of soil formation are nature of parent material, climate, vegetation, soil organic and topographic. These are the factors which affect the soil productivity, which are the same both in dry as well as in humid region. However, in arid region, physical weathering predominant soil formation. Physical weathering के द्वारा soil formation होता है जिसमें erosion and redeposition are the most important soil forming process in arid region. Rainfall is an important factor which affect the type and predominant properties of soil. Soil development in the semi-arid area of Deccan plateaus are mainly vertisol, black soils, and alpisol, red and related soils, which in the arid zone of Rajasthan they are arid soil and antisols. राजस्थान में arid और antisols dominantly पाई जाती है. In dryland region, nearly 30% of soil are covered by alpisol and associated soils, 35% by vertisol and associated soils, and 10% by antisols of the alluvial areas. Most of the alpisol are sandy loam with the subsoil alluvial layer of clay, less water retentive and prone to drought, यानी उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है. The vertisol are deep with a clay content of 30 to 70% and rich in base, saline nature. The clay type are semi-active, montmorillonite and abydolite. The soil have high water holding capacity, frequent fertile and less drought prone. एंड ड्रॉट प्रोन कम होती है, न्यूट्रिएंट कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें क्ले कंटेंट अधिक पाया जाता है. करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राईलैंड सोइल्स. ड्राईलैंड सोइल्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है? ड्राईलैंड सोइल्स आर जनरली लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड एल्कलाइन टू स्लाइटली एसिडिक इन रिएक्शन. इन दी सरफेस हैव कैल्शियम कार्बोनेट एक्मुलेशन इन दी अपर 150 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल लेयर्स. ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है जो 150 सेंटीमीटर के ऊपर ही होती है, 150 सेंटीमीटर तक होती है. वीक टू मॉडरेट प्रोफाइल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है. कोर्स टू मीडियम टेक्सचर, कोर्स और मीडियम टेक्सचर सॉइल्स होती है जो लो बायोलॉजिकल एक्टिविटी रखती है, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लो होती है. नियरली 2/3 ऑफ इंडियाज लैंड मास हैज़ मोर देन 3% स्लोप एंड इज हाईली अंडुलेटिंग. ज़्यादातर जो इंडिया की सॉइल्स है वो 3% से ज़्यादा स्लोप वाली होती है जो डिग्रेडेशन यानी इरोजन के सुटेबल होती है. द टॉप सॉइल्स शो मेनी टेक्सचर ग्रुप लाइक लोमी सैंड, सैंड लोम, सिल्ट लोम टू क्ले लोम. ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं अकॉर्डिंग टू सॉइल टेक्सचर. द सॉइल्स आर प्रीडोमिनेंट कोर्स टेक्सचर एंड हैंस रिटेन लेस वाटर एंड न्यूट्रिएंट. मोस्टली जो सॉइल होती है वो कोस्ट टेक्सचर सॉइल होती है जिसकी वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम होती है. वाटर होल्डिंग और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है. क्रॉप ग्रोन ऑन देम आर
प्रोन टू ड्रोट एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो उसमें दोनों की डेफिशिएंसी होती है, वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। द लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज ड्यू टू स्प्रे वेजिटेशन प्रोड्यूसिंग लिटिल रेडिड्यूस। कम वेजिटेशन होता है इसलिए ऑर्गेनिक मैटर भी कम होता है। द टॉप सॉइल व्हेन इरोडेड इज डिवॉइड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर thus resulting in deficiency of several nutrients। और जो इरोजन के द्वारा फर्टाइल सॉइल्स रिमूव हो जाती है तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी उसमें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव ग्राजिंग एंड लार्ज अनप्रोटेक्टेड फील्ड डिवाइड ऑफ प्रोटेक्टिव वेजिटेशन आर नोन टू काज विंड इरोजन। और ग्राजिंग होती है, ग्राजिंग ज़्यादा होती रहती है तो और फील्ड के बॉन्ड नहीं होती है, प्रोटेक्टिव वेजिटेशन नहीं होती है, इसलिए विंड इरोजन ज़्यादा होता है। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ड्राईलैंड सॉइल लीड टू डिग्रेडेटिव प्रोसेस इन रेनफीड सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इम्पोज द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट फॉर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन आर मच रिड्यूस परमेबिलिटी को, सॉइल परमेबिलिटी को बढ़ाना है जिससे वाटर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एंट्री कर सके। पुअर रेस्ट्रिक्ट रूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। टिलेज एंड सीडिंग प्रॉब्लम्स, टिलेज पुअर सीडिंग एस्टेब्लिशमेंट, सीड है वो पुअर एस्टेब्लिश हो पाते हैं। अनइवन सॉइल वेटिंग, उसका सॉइल वेटिंग है वो इनइक्वल होती है, इक्वल नहीं होती है। सेलिनिटी एंड शेलो वाटर टेबल, मोस्ट ऑफ सेलिनिटी सेलाइन सॉइल्स होती है एरिड जोन में और उसकी वाटर टेबल होता है वो शेलो होता है। पुअर सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल फर्टिलिटी कम होती है। एंड सेकेंड इज क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स, द ड्राईलैंड ऑफ द वर्ल्ड शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स। टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक और प्रेसिपिटेशन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। नॉन ट्रॉपिकल ड्राईलैंड में कोल्ड सीजन में लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस टू मिड विंटर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। मिड में 10 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है जो वेरी वार्म यानी मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस इन समर्स। मॉइस्चर रिज्यूम रेंजिंग फ्रॉम एरिड टू सेमी एरिड टू सब ह्यूमिड एरिया। वेरिएबल प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स एंड कोल्ड इज जनरल बट वेरिएबल कंस्ट्रेंट डिपेंडिंग ऑन सेवेरिटी ऑफ द विंटर रिक्वायरिंग एडाप्टेशन ऑफ प्लांट एंड क्रॉप्स। यानी कोल्ड जो सीजन होता है उसमें वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, टेम्परेचर कम होता है, वाटर स्केसिटी होती है जिससे कि प्लांट डेवलपमेंट कम हो पाता है। एग्रीकल्चरल सिस्टम आर डोमिनेटेड बाय नॉन ट्रॉपिकल क्रॉप विद लोअर वाटर रिक्वायरमेंट, यानी वीट और बार्ले का एग्जाम्पल इसमें विद विंटर रेनफॉल पैटर्न्स। वाटर नीड ऑफ क्रॉप आर लोअर एज compared to tropical areas, therefore higher water use efficiency. C3 crop have a productivity advantages। रबी क्रॉप्स में यानी विंटर में अपन C3 प्लांट्स उगाते हैं जिनकी वाटर यूज एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू C4 प्लांट्स। विद समर रेनफॉल पैटर्न, वाटर नीड ऑफ क्रॉप आर हाईली देन इन विंटर रेनफॉल पैटर्न but usually lower than in tropical areas. C3 plant crop are adapted to high temperature or C4 crops adapted to lower temperature have a productivity advantage। तो इस प्रकार से उसकी एडवांटेज प्रोडक्शन में एडवांटेज मिलती है। विद ट्रेडिशनल रेनफॉल पैटर्न resume with 2 rainy season is summer and in winter or with regular unpredictable patterns। ट्रॉपिकल ड्राईलैंड में वार्म विंटर में 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वार्म 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू वेरी वार्म यानी मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस इन समर्स। एरिडिटी रिज्यूम रेंजिंग फ्रॉम एरिड टू सेमी एरिड एंड सब ट्रॉपिक्स। समर precipitation regimes are the norm although they can be shifted to autumn bimodal rainfall in the Horn of Africa। In view of the general warm winter, the growing season is not limited by temperature and cold is not a constraint for crop or plants. However, the water requirements are higher
in view of higher evaporative demand of the atmosphere. Production systems are dominated by tropical crops. Millet, sorghum, rice, means C4 crops have a productive advantage to desert area with higher hyper-arid moisture regions. Almost no perennial vegetations, agricultural and grazing are generally impossible. जो प्योर ट्रू डेजर्ट होता है वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता है, ग्राजिंग पॉसिबल नहीं है. तो ये दिस इज एंड. Good morning. Myself Om Shankar Yadav, Assistant Professor Agronomy. Myself Om Shankar Yadav, Assistant Professor.